Dear students, this is Imran Kazmi and here is your lecture 28 of Programming Fundamentals. In the previous lecture, we were working on pointers. We have discussed pointer to functions, pointer arithmetics, pointer to arrays, and arrays of pointers. In this lecture, we are going to start a new topic named as structure. What is structure? In this lecture, we have to cover the following topics related to structure. We will discuss introduction to structure, array of structure, pointer to structure, nested structure, and passing structure to functions. Let's start from the introduction to structure. Before we start introduction to structure, let's discuss a problem that would clarify the need of the structure. For example, the problem is how to group together a collection of data items of different types that are logically related to a particular entity. Here we have to collect data items of different types. So when we need to collect data items of different types for a particular entity, what data type or what possibility do we have to store data items of different types? Do we use arrays? The answer is no, because for arrays we have to use data items of same types, but over here if we need data items of different types, we cannot use array. So array is the wrong answer. We cannot use array for the different data types. So for this purpose, we have structure. Structure is basically a data type that is used for different data types. So what is structure? Here again we clarify the concept of arrays. Arrays allow to define type of variables that can hold several data items of the same kind. Same kind mean of same type. For example, if we have an array of integer type, all the data items that are present in the array would be of type integer. If we have an array of float kind, all the data items would be of float type. So the same data item, same type of data item would be present in arrays. But if you need for different data types, we will go for structure. So what is structure? Structure is a user-defined data type that allow to combine data items of different kinds. Here different kinds mean structure can hold integer data, float data, character data, double data, or any type of data with the same structure. So it is somehow different from arrays, that array allow only same types of data, but it allow different types of data. So structure is useful for storing records of different types of data. So let's discuss some of the properties. A structure is a collection of variables of different data types under a single name. As array is a collection of variables of same type under a single name, so structure is a collection of variables with different data items under a single name.
The variables are called members of the structure. So the data within the structure would be called as member of the structure. The structure is also called a user-defined data type. We may call it as user-defined data type. तो सबसे अहम बात यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जो सबसे अहम डिफरेंस आप ज़हन में रखें वो ये है कि अरे में आपके पास सिमिलर डाटा आइटम्स की कलेक्शन होती है, लेकिन इन सम रियल सिचुएशंस आपको एक ऐसी कलेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स आपको स्टोर करवानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करवाना हो जिसमें नेम भी हो, जिसमें फादर नेम भी हो, जिसमें एड्रेस भी हो, जिसमें मार्क्स भी हो, जिसमें परसेंटेज भी हो, जिसमें ग्रेड भी हो। तो इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो आएगा। तो वहाँ पे अरे जो है वो आपका काम नहीं करेगा। तो जहाँ पे आपको रिकॉर्ड स्टोर करना हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर करना हो, तो उसके लिए आप जो है वो जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यूज़ करेंगे, दैट वुड बी स्ट्रक्चर. Structure has the ability to store data of different data types. Structures are used to represent a record. Suppose you want to keep track of your books in a library. You might want to track the following attribute of each book. Let's say title, author, subject, book ID. तो अगर आपने अपनी लाइब्रेरी की बुक्स का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना है और हर बुक का आपने जो है वो टाइटल भी स्टोर करना है, उसका ऑथर भी स्टोर करना है, सब्जेक्ट भी स्टोर करना है और आईडी भी स्टोर करना है, तो इसमें आपके डिफरेंट डाटा टाइप्स की कलेक्शन या कॉम्बिनेशंस जो है वो आपको रिक्वायर्ड हो। जैसे टाइटल ऑथर के लिए आपको जो है वो स्ट्रिंग डाटा या करैक्टर अरे रिक्वायर्ड होगा, सब्जेक्ट के लिए में भी अल्फ़ा न्यूमेरिक आप यूज़ करें और बुक आईडी के लिए आप न्यूमेरिक डाटा यूज़ करेंगे। तो आपके पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो रिक्वायर्ड होगा लाइब्रेरी बुक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल जिसमें आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना हो, उसके लिए आप जो है वो स्ट्रक्चर डाटा टाइप यूज़ करेंगे। हाउ टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे? We have a word or keyword struct. Struct keyword is used to define a structure. Struct define a new data type which is a collection of primary or derived data types. For example, here is the general syntax of defining structure. Here struct is a keyword, structure name, whatever you want to assign, while struct remain the same. कीवर्ड आप वही रखेंगे, ये कीवर्ड आपका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम आप देंगे। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट दे सकते हैं, आप एम्प्लॉय दे सकते हैं, आप लाइब्रेरी दे सकते हैं, आप बुक्स दे सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर नेम हो सकता है, लेकिन ये कीवर्ड ऐसे ही रहेगा। उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करें और स्ट्रक्चर मेंबर जो है वो आप डिफाइन करें। जैसे आप नेम रखें तो ये आपके मेंबर हो सकते हैं, टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, बुक आईडी। या आप स्टूडेंट की बात करें तो उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसकी परसेंटेज, उसका ग्रेड, तो ये उसके मेंबर्स बन जाएंगे। और नेम आप उसका चाहें तो स्टूडेंट रखें या लाइब्रेरी, जो भी अकॉर्डिंगली आप देख लें कि जो सूटेबल नेम बनता है वो स्ट्रक्चर का नेम रखें और उसके बाद उसको क्लोज़ करें सारे मेंबर्स कंप्लीट होने के बाद जितने भी हैं, और फिर सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफाइन किए हैं, एक एम्प्लॉय के नाम से और दूसरा स्टूडेंट के नाम से। तो जो एम्प्लॉय के हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है उसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है इंटीजर, करैक्टर हमने अरे डिक्लेयर किया है फॉर नेम, सिमिलरली सिटी भी हमारा करैक्टर अरे है,
और सैलरी जो है उसको हमने फ्लोट जो है वो यहाँ पे सेट किया है। तो ये 4 एट्रीब्यूट जो रिकॉर्ड के बन रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी और सैलरी, इन चारों को इकट्ठा करके हमने कंबाइन कर दिया एम्प्लॉय स्ट्रक्ट में या एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में। सिमिलरली स्टूडेंट का अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड आएगा, उसके बाद स्टूडेंट, दैट इज़ द स्ट्रक्चर नेम, उसके बाद हमारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे जिनको मेंबर डाटा कहा जा रहा है, जैसे रोल नंबर है, नेम है, सिटी है और मार्क्स हैं। और ये देखें कि इनकी टाइप जो है वो डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे इंटीजर है, ये करैक्टर है, ये करैक्टर है, ये भी फ्लोट है। तो स्ट्रक्चर का और अरे का मेजर डिफरेंस ही यहाँ पे ये है कि अरे में सिमिलर टाइप ऑफ डाटा होता है और स्ट्रक्चर जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को कंबाइन करने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे देखें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो हमने कंबाइन किया है अंडर अ सिंगल नेम स्टूडेंट। और सिमिलरली एम्प्लॉय के लिए भी ये एम्प्लॉय आईडी है, ये इंटीजर है, ये 2 करैक्टर अरे हैं और एक फ्लोट है सैलरी। तो ये भी हमने क्या किया है कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को कंबाइन किया है अंडर अ सिंगल नेम एम्प्लॉय। तो 2 हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किए हैं यहाँ पे, एक एम्प्लॉय के नाम से और एक स्टूडेंट के नाम से। Struct variables. How to create a struct variables? When a struct type is declared, no storage or memory is allocated. For example, यहाँ पे आपने struct employee जो है वो डिफाइन की है, तो इसमें वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं। तो राइट नाउ ये स्ट्रक्चर के मेंबर डाटा है और इसने अभी तक कोई मेमोरी रिजर्व नहीं की। सिमिलरली स्टूडेंट का भी आपने ये मेंबर डाटा सेट किया है, लेकिन इसने अभी तक कोई मेमोरी जो है वो रिजर्व नहीं की, इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की हुई। लेकिन to allocate memory of a given structure type and work with it, we need to create variables. जब तक हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट नहीं करेंगे तब तक स्ट्रक्चर के मेंबर डाटा को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉई है हमारे पास, तो एम्प्लॉय आईडी, नेम, सिटी और सैलरी, ये हमारी स्ट्रक्चर जो है वो हमने डिफाइन किया है। तो अभी तक इसे कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। मेमोरी एलोकेट कब होगी? जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मेन में इस एम्प्लॉई स्ट्रक्चर के, ये एम्प्लॉई, ये स्ट्रक्चर के 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, E1, E2 और E3। तो एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है वो E1 के लिए रिजर्व हो जाएगा, एक ब्लॉक E2 के लिए रिजर्व हो जाएगा और एक ब्लॉक जो है वो E3 के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो जो E1 वाला ब्लॉक होगा उसमें आपके पास ये सारे मेंबर डाटा मौजूद होगा और वो कितने बाइट्स का होगा? 30 और 20 50 बाइट्स, सिमिलरली 2 52 और 4 56। सो E1 का जो ब्लॉक होगा ये 56 बाइट्स जो है वो अलहदा होंगे, E2 के 56 बाइट्स जो है वो अलहदा होंगे और E3 के 56 बाइट्स जो है वो अलहदा होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आप ये स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक कोई मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि आप जब तक आप इसके वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते तब तक नहीं पता कि कितने बाइट रिजर्व करने हैं। तो जब आपने इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया तो एक ब्लॉक जो है वो रिजर्व होगा डिपेंडिंग अपॉन द मेंबर डाटा। तो जितना आपका मेंबर डाटा ले रहा है बाइट्स, उसी हिसाब से आपका एक ब्लॉक रिजर्व होगा। जैसे यहाँ पे 56 बन रहे हैं तो E1 के लिए 56 बाइट्स सेपरेट रिजर्व होंगे, E2 के लिए 56 बाइट्स सेपरेट रिजर्व होंगे और सिमिलरली E3 के लिए 56 बाइट्स जो है वो सेपरेट रिजर्व होंगे। सो जब आप स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट करते हैं तब मेमोरी एलोकेट होती है, ना कि जब आपने स्ट्रक्चर डिफाइन किया तब मेमोरी एलोकेट हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि मेमोरी उस वक्त एलोकेट होगी जब ये स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो है वो आप क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है उसको डिफरेंट वे से भी क्रिएट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने
स्ट्रक्ट इम्प्लाई उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर के डिफाइन किया, और फिर क्लोजिंग से पहले ही हमने E1, E2 और E3 इसके 3 वेरिएबल्स रख दिए। तो अगर आप जो है वो इस तरह से करना चाहें कि आप मेन में जो है यहाँ पे इसे क्लोज कर दें और मेन में उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहें, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर नेम जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी के साथ जो है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स आप कर देंगे तो दोबारा आपको स्ट्रक्चर का नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा और बाद में आप स्ट्रक्चर को क्लोज कर दें। तो इस तरीके से भी आप स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो डाटा है, ये जो मेंबर डाटा है, ये E1 के लिए सेपरेट है, E2 के लिए ये मेंबर डाटा सेपरेट है, और E3 के लिए ये मेंबर डाटा जो है ये आपका सेपरेट है। हाउ टू असेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का जो मेंबर डाटा है उसको एक्सेस सिंपल वे से नहीं किया जाता। Rather, we have two types of operators that are used to access member data of the structure. One is called member operator. This is dot operator. This dot operator may also be called as member operator. And the other is arrow operator. This arrow operator is also called structure pointer operator. So these two operators would be used to access the member data of the structure. So this is the member data. And E1, E2, E3 are the structure variables. तो स्ट्रक्चर का जो डाटा है, मेंबर डाटा, इस डाटा को एक्सेस करने के लिए आपको ये दो ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। डॉट ऑपरेटर जिसको मेंबर ऑपरेटर भी कहते हैं, और एरो ऑपरेटर जिसको स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर भी कहते हैं। इन ऑपरेटर्स के साथ जो है वो आप इस डाटा को एक्सेस करेंगे। सपोज हेयर वी वांट टू असेस द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय E1। तो E1 की सैलरी आपने एक्सेस करनी है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि E1 का ब्लॉक जो है वो सेपरेट है, E2 का ब्लॉक सेपरेट है और E3 का ब्लॉक सेपरेट है। तो अगर आपने सैलरी जो है वो असेस करनी है तो उसके लिए आपने उसका रेफरेंस ज़रूर बताना है कि वो सैलरी आपको E1 की सैलरी रिक्वायर्ड है, E2 की सैलरी रिक्वायर्ड है या E3 की सैलरी रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको E1 की सैलरी रिक्वायर्ड है तो आप लिखेंगे E1 डॉट सैलरी। सिमिलरली अगर आपको E1 का नेम रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप मेंशन करें E1 डॉट नेम। और सिमिलरली अगर E1 का एम्प्लॉय आईडी रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप मेंशन करें E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी। सो पुट राइट 1 over here. So E1 dot name, E1 dot salary and E1 dot employee ID. सिमिलरली अगर ये सारे एट्रीब्यूट या मेंबर आपको जो है वो E2 के लिए रिक्वायर्ड है तो आप उसके लिए E2 डॉट सैलरी मैंशन करेंगे, उसका रेफरेंस बताना ज़रूरी है। सिमिलरली E2 डॉट नेम और E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी। और इसी तरह से अगर आपको E3 के लिए ये सारा डाटा रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आप E3 डॉट सैलरी, E3 डॉट नेम और E3 डॉट एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे। तो याद रखें कि स्ट्रक्चर का मेंबर डाटा एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर वेरिएबल्स का रेफरेंस देना ज़रूरी है। आप स्ट्रक्चर का मेंबर डाटा विदाउट स्ट्रक्चर वेरिएबल रेफरेंस के आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम इसकी फर्दर डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।